السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز کی رفتار تھم چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ انفیکشن کے 1,27,510 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران 2,795 مریض فوت ہوئے ہیں۔ ملک میں متاثرہ افراد کی کل تعداد 2,81,75,044 ہو گئی ہے۔ منگل کی صبح وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں لگاتار 19ویں روز بھی انفیکشن سے پاک ہونے والوں کی تعداد نئے کیسوں سے کہیں زیادہ رہی ہے۔ ملک میں اب تک 2,62,47,429 افراد انفیکشن فری ہو چکے ہیں۔ ان میں سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,55,287 افراد صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ دہلی میں گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں شراب۔ کیجریوال حکومت نے ہوم ڈیلیوری کی اجازت دے دی ہے۔ اب دہلی میں بھی شراب کی گھریلو فراہمی شروع ہو چکی ہے۔ دہلی حکومت نے موبائل ایپ کا آن لائن ویب پورٹل کے ذریعے شراب کی گھر میں ترسیل کی اجازت دی ہے۔ اس سے قبل چھتیس گڑھ حکومت نے شراب کی ہوم ڈیلیوری کی اجازت دی تھی۔ اس کے پیچھے حکومتوں کا استدلال ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے کورونا کے عرصے میں شراب کی دکانوں پر کوئی ہجوم جمع نہیں ہوگا۔ دہلی ایکسائز قواعد 2021 کے مطابق L13 لائسنس رکھنے والوں کو لوگوں کے گھروں تک شراب پہنچانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ لائسنس دہندگان صرف موبائل ایپ یا آن لائن ویب پورٹل کے ذریعے آرڈر کی وصولی پر ہی گھروں میں شراب پہنچائیں گے اور کسی ہاسٹل، دفتر یا ادارے کو کوئی ڈیلیوری نہیں دی جائے گی۔ لکشدیپ کے رکن پارلیمنٹ محمد فیصل نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس مسودہ قانون کی جس کی جزیرے کے عوام مخالفت کر رہے ہیں، اس کو مقامی نمائندوں سے بات چیت کے بغیر حتمی شکل نہیں دی جائے گی۔ امت شاہ سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل نے کہا کہ انہوں نے وزیر داخلہ کو نئے ایڈمنسٹریٹر پرفل پٹیل کی تجویز کردہ مسودے کے قانون کی سخت مخالفت سے آگاہ کیا ہے۔ ہندوستان میں ایندھن کی قیمتیں ریکارڈ توڑ بن رہی ہے۔ منگل یعنی 1 جون 2021 کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے دن اضافہ کیا گیا۔ 15 مئی کے بعد سے قیمتوں میں ایک دن کے وقفے سے مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن آج لگاتار دوسرا دن ہے جب قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آج جب پیٹرول کی قیمت میں 27 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے تو ڈیزل کی قیمت میں بھی 23 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ملک کے بہت سے شہروں میں پیٹرول 100 روپے سے زیادہ میں فروخت ہو رہا ہے اور دارالحکومت دہلی میں 94 روپے سے آگے جا رہا ہے۔ ڈیزل بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ 2 دن کے اضافے میں پیٹرول 56 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ پیر کو پیٹرول کی قیمت میں 29 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ڈیزل میں اضافے کے ساتھ یہ ایندھن بھی 2 دن میں 49 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ملک میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور عوام پہلے سے جو لاک ڈاؤن اور کورونا وبا سے پریشان حال ہیں، ان پر مہنگائی کا بوجھ عائد کر مودی حکومت ان کو مزید جھکانے میں مبتلا ہے۔ لکشدیپ کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کیرالہ قانون ساز اسمبلی نے اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی اور جزیرے کے ایڈمنسٹریٹر پرفل پٹیل کو واپس طلب کرنے کا مطالبہ کیا اور جزائر میں رہنے والے عوام کی زندگیوں اور گزر بسر کے تحفظ کے لیے مرکز کی فوری مداخلت طلب کی۔ اس کے ساتھ کیرالہ ملک میں پہلی ریاست بن گئی ہے جس نے حالیہ واقعات پر مرکزی زیر انتظام علاقے کے عوام کی تائید میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ لکشدیپ بحر عرب میں کئی جزائر پر مشتمل ایک علاقہ ہے جہاں مقامی عوام کئی دنوں سے پٹیل کی جانب سے شروع کردہ انتظامی اصلاحات اور کارروائیوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر پنرائی وجین نے یہ قرارداد پیش کیا اور یاد دلایا کہ کیرالہ اور لکشدیپ کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رشتہ ہے۔ انہوں نے وہاں کی فطری جمہوریت کو تباہ کرنے کی مبینہ کوشش کے لیے مرکز پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ لکشدیپ کا مستقبل ایک تشویش کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی منفرد تہذیب اور طرز زندگی کو متاثر کرنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔ مغربی بنگال کے سرکردہ آفیسر الپین بندوپادھیائے چیف سیکرٹری کی حیثیت سے سبکدوش ہو گئے اور انہوں نے مرکز کی ہدایت نظر انداز کر دی جس میں ان کو واپس رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ آج اس معاملے میں ڈرامائی تبدیلی آئی اور عملاً چیف منسٹر ممتا بنرجی کی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ رساکشی میں شدت پیدا ہو گئی کیونکہ انہوں نے بندوپادھیائے کو اب حکومت بنگال کا چیف ایڈوائزر مقرر کر لیا ہے۔ تاہم یہ اقدام شاید بندوپادھیائے کو مرکز کی ناراضگی سے محفوظ نہیں رکھے گا۔ انہیں ذرائع کے مطابق سرکاری احکام کی خلاف ورزی کی پاداش میں چارج شیٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایچ کے دیوری نئے بنگال چیف سیکرٹری کی حیثیت سے جائزہ لے چکے ہیں۔ مسجد غریب نواز تحصیل رام سنی گھاٹ کی شہادت کے بعد اقلیتی طبقے کی جانب سے جاری مخالفت اور مسجد کی تعمیر نو کے مطالبات کا معاملہ ابھی حل ہی نہیں ہوا تھا کہ تحصیل فتح پور بارہ بنکی کے موضع قطری کے مدرسے سراج العلوم و مسجد پر اب انتظامیہ و فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہے اور بھاجپا علاقائی ممبر اسمبلی کی شے پر مدرسہ و مسجد کو منہدم کرنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ
बंजर ज़मीन बताकर मस्जिद तामीर का इल्ज़ाम आयद करने वालों को मदरसा कमेटी की जानिब से 5 अप्रैल को जवाब दाखिल किए जाने के बाद SDM फतेहपुर की जानिब से कोई जवाब मौसूल न होने की बिना पर जिम्मेदार मदरसे में इदारे को लेकर सख्त तशवीश पाई जा रही है। वहीं इलाके के मुसलमानों में सख्त बेचैनी की सूरत हाल बनी हुई है। काबिल जिक्र है कि हाल ही में बाराबंकी के तहसील रामसैनी घाट में 100 साल कदीम मस्जिद को गैर कानूनी बताकर शहीद कर दिया गया और मुजफ्फरनगर के कस्बा कथौली में तामीर अल जमील मस्जिद को भी इंतजामिया ने नाजायज़ तौर पर तामीर का हीला बनाकर शहीद कर दिया है। इन मामलात को देखते हुए गांव के मुसलमानों और इलाके के लोगों में तशवीश बढ़ती जा रही है। 15 जून तक लॉकडाउन के बावजूद मुंबई में भीड़ देखकर वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने हैरत का इजहार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने मुतनबा किया है कि अगर मुंबई में इस तरह के हुजूम का सिलसिला जारी रहा तो वो सख्त पाबंदियां आयद कर देंगे। वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम किताब मल्टी पेस्टेज की इशात के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आज सड़क पर ट्रैफिक देखकर हैरान रह गया। हमने मुंबई या महाराष्ट्र में पाबंदी ख़त्म नहीं की है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम लापरवाह हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने वाली ज़िंदगी एक बार फिर वक्फे का बास होगी और हम कोरोना की तीसरी लहर की वजह बनेंगे। अगर मुंबई में इस तरह का हुजूम रहता है तो पाबंदियाँ सख्त करने की ज़रूरत होगी। मशहूर माहिर इस्लामियात मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर और जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर एमिरेट्स प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मलून वसीम रिजवी की अहानत कुरान और कुरान के खिलाफ दरीदा जहनी का सख्त नोटिस लेते हुए इसकी भरपूर मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी का मकसद अपनी झूठी पब्लिसिटी कराना और मुसलमानों को मुश्तिल करना मकसूद है। प्रोफेसर वासे ने तमाम मुस्लिम जमातों और इदारों के सरबराहों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में एक इज्तिमाई वफ्द की शक्ल में फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वसीम रिजवी की नाज़िबा और दिलशकनी वाली हरकत पर फौरी तौर पर सरकारी एक्शन लिए जाने का मुतालबा करें, क्योंकि इस तरह की कोशिशों से मुल्क में सूरत हाल ख़राब हो सकती है। क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम और कुरान करीम की बेहुरमती और तौहीन को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रोफेसर वासे ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो वसीम रिजवी की कुरान दुश्मनी और सरकारी मिशनरी के बेहसी के खिलाफ दूसरे मज़ाहिब के मुख्तदर तरीन रहनुमाओं को शामिल करके रामलीला ग्राउंड में एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकालनी चाहिए। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दायर करके इसको सख्त सज़ा देने का मुतालबा करें। मस्जिद हरम की तीसरी तोसी के कामों का अहिया हो चुका है। हरमैन शरीफीन के उमूर के निगरान की जानिब से इस सिलसिले में ऐलान किया गया है। बताया गया है कि तोसी और तामीराती कामों के लिए मुख्तलिफ शोबों जैसे कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वगैरह के लिए 60 रेगुलेटरी लाइसेंस जारी किए गए हैं। आज़मीन उम्रा और दीगर के लिए मस्जिद हरम में गुंजाइश बढ़ाना इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद है, जिसके लिए जुमला 5,28,301 मुरब्बा मीटर पर काम हो रहा है। इसमें शाह अब्दुल्ला तोसी प्रोजेक्ट शामिल है। दीगर कामों में बड़े गेट्स जैसे शाह अब्दुल अजीज़ अल उम्रा अल फतेह के अलावा मीनारों और सीलिंग का काम शामिल है। मताफ बिल्डिंग की कई मंजिलों पर भी काम किया जाएगा। मिस्र की सबसे बड़ी दरगाह जामे अल अजहर ने बार कराया है कि मस्जिद अक्सा से मुतसिल दीवार बराक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मुकद्दस मुकाम है, जिस पर किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों का कोई हक नहीं है। जामे अल अजहर ने वाज़ेह किया है कि दीवार बराक को गलत तौर पर दीवार गरिया का नाम दिया जाता है। यह नाम ख़तई गलत और बेबुनियाद है। दीवार बराक खालिस वक्फ इस्लामी का हिस्सा है। अल अजहर की तरफ से यह बयान अल-कुद्स अरब हुकूक और सय्योनी दावों के दरमियान के उन्वान से शुरू हुई मुहिम के दौरान सामने आया है। जामे अल अजहर का कहना है कि दीवार बराक मस्जिद अक्सा की जुनूबी दीवार और हरम खुदसी की मगरबी दीवार का हिस्सा है। तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन में 9 जून तक तोसी करते हुए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिसके तहत सरकारी दफातर और अहम खिदमात से मुतालिक महकमा जात के मुलाजमीन को लॉकडाउन से इस्तिस्ना दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जारी करदा अहकामात के तहत महकमा जात हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अर्बन डेवलपमेंट व पंचायत राज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एक्साइज, कमर्शियल टैक्स, ट्रांसपोर्ट, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, सिविल सप्लाईज और हार्टिकल्चरल महकमा जात के मुलाजमीन और उनकी गाड़ियों को लॉकडाउन में गुजरने की इजाज़त रहेगी। सरकारी दफातर 50% मुलाजमीन की हाज़िरी के साथ काम करेंगे और मुलाजमीन की ड्यूटी रोस्टर की बुनियाद पर अलॉट की जाएगी। सरकारी दफातर के औकात सुबह 10 था दोपहर 1 बजे तक रहेंगे। हुकूमत ने सिनेमा हॉल्स, क्लब, स्विमिंग पूल्स, बार्स, पब्स, जिम्नाजियम और स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला किया है। जियो के मुताबिक रियासत की सरहदों पर ई पास के बगैर पैसेंजर गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज मेट्रो ट्रेन खिदमात का मुआयना किया और स्टेशनों में कोविड क़वायद की पाबंदी का जायजा लिया। सोमेश कुमार के हमरा हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी और
LNT मैनेजिंग डायरेक्टर KVB रेड्डी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने मेट्रो ट्रेन में ओहदेदारों के हमरा खैरताबाद स्टेशन से अमीरपेट तक सफ़र किया और मुसाफिरीन से सहूलतों के बारे में बात की। लॉकडाउन के औकात में तोसी के सबब मेट्रो ट्रेन की खिदमात में इजाफा किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने ट्रेन खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने और सेफ्टी इंतजामात पर मुसाफिरीन से राय हासिल की। अवाम ने मेट्रो खिदमात और सेफ्टी इंतजामात की सताइश की। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए गर्माई तातीलात में 15 जून तक तोसी कर दी है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास में लॉकडाउन में तोसी के पेश नज़र स्कूलों की गर्माई तातीलात में 15 दिन की तोसी की हिदायत दी है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने तमाम रीजनल जॉइंट डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स को हिदायत दी कि अहकामात पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। आंध्र प्रदेश में जारी कोरोना लॉकडाउन में मजीद 10 दिन की तोसी की गई है। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा आला सतही इजलास में लॉकडाउन में तोसी का फैसला किया गया। लॉकडाउन की मुद्दत आज सुबह खत्म हो गई। हुकूमत के फैसले के मुताबिक 10 जून तक लॉकडाउन कर्फ्यू नाफिज रहेगा और सुबह 6 ta 12 बजे दिन नरमी दी जाएगी ताकि अवाम ज़रूरी अशिया की खरीदो फरोख्त कर सकें। वाज़ रहे कि रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद हुकूमत ने कर्फ्यू के निफाज का फैसला किया है। बताया जाता है कि 10 जून के बाद हुकूमत रियायतों में मज़ीद तोसी पर गौर कर सकती है। तेलंगाना के मुकाबले आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस ज़्यादा है। तेलंगाना में लॉकडाउन में तोसी के पेश नज़र बैंकों के औकात में भी कदर तब्दीली की गई है। इत्तलात के मुताबिक यकम ta 9 जून बैंक सुबह 10 बजे ta 2 बजे दिन काम करेंगे। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें काम के औकात में तब्दीली का फैसला किया गया। बैंकर्स कमेटी ने कहा कि 9 जून तक काम के औकात में कदर तब्दीली की गई है। लॉकडाउन के ताल्लुक से बादशाह हुकूमत के फैसले के बाद बैंकों के औकात में तोसी पर फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने 30 मई से 9 जून तक लॉकडाउन में तोसी का फैसला किया है। बैंकर्स कमेटी के ज़राए ने बताया कि 9 जून तक लॉकडाउन जारी रहने वाला है और हुकूमत बादशाह जो भी फैसला करेगी इसके मुताबिक औकात तब्दीली की जाएगी। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए लॉकडाउन के दौरान पुलिस इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत भर में लॉकडाउन पर मौसर तरीके से अमल आवरी की जा रही है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो कोरोना वायरस पर काबू पाने और अपनी सेहत के पेश नज़र घरों में ही रहें क्योंकि अवाम की सेहत को नज़र में रखते हुए रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। DGP ने इंतबाह दिया कि लॉकडाउन में नरमी के औकात के अख्तिताम के बाद गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने वालों की गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। उन्होंने एमरजेंसी खिदमात के लिए दीगर रियासतों से तेलंगाना आने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो ई-पास हासिल करें। रियासती हुकूमत ने 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर रियासत के 32 अजला में यौम तासीस तेलंगाना की सरकारी तकारीब में शिरकत के लिए रियासती उज़रा, गवर्नमेंट वेब और मुख्तलिफ शख्सियतों को जिम्मेदारी सौंपी है जिसमें ये शख्सियात यौम तासीस के दिन कौमी परचम कशाई के साथ तेलंगाना के शहीदों को खिराज पेश करेंगे। रियासत में कोरोना की वबा के पेश नज़र इंतहाई सादगी के साथ यौम तासीस तकारीब का अहतमाम करने का हुकूमत ने फैसला किया है। उस्मान सागर को जो गंडीपेट के नाम से मशहूर है NTR गार्डन की तरह बड़ी सयाहती मरकज़ में तब्दील किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने गुज़िश्ता हफ्ते कामों का जायज़ा लिया। इस बात का लिहाज रखा जा रहा है कि उस्मान सागर के पानी के मियार पर कोई असर ना पड़े। 18 एकड़ अराजी से कायम हुए सयाहती मरकज़ के प्रोजेक्ट से 26 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च होंगे।